Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have discussed some questions of exercise 10.3 which were regarding the dot product of vectors, angle between two vectors and the projection of a vector on a vector. So we are on exercise 10.3 and there we are on question number 7. So lies the question number 7 of exercise 10.3. There we need to find the product. We have to evaluate the dot product. That is, we have to evaluate we have 3a vector plus minus 5b vector dot 2a vector plus 7b vector. We have to calculate this dot product. तो जिगरा कैसे कैलकुलेट करेंगे? This is equal to, yes, as we know that the dot product is meant for vectors, not for the scalars. So in that dot product, scalars would be multiplied with each other as per the multiplication, as per the rule of multiplication. तो स्केलर को स्केलर के साथ डायरेक्टली मल्टीपल कर दो, फिर a डॉट a, तो पहले 3a से डॉट करेंगे दोनों टर्म्स को, फिर माइनस 5b से डॉट करेंगे दोनों टर्म्स को, तो क्या आएगा रिजल्ट? 3 2s are 6, that is 6a dot a, so a dot a. Shabash jigra. 3 7s are plus 21 into a dot b, so a dot b. Yes. Further we have अब minus 5b से कर दो, minus 5b dot 2a, that is minus 5 into 2, that is minus 10, b dot a, so b dot a. Yes. इसके बाद minus 5 into 7, that is minus 35, b dot b, so lies b dot b. This can be further written as 6 is 6, a dot a, the dot product of a vector with itself gives us the magnitude of that vector का square. तो आएगा जिगरा 6 into mod a square plus this is 21 a dot b minus 10. Instead of b dot a we can write a dot b. Why? Because the dot product of vectors is always commutative. Minus 35 times b dot b is mod b square. Because here we have used two conditions, that is because v dot v is always equal to mod v square and v1 dot v2, the dot product of two vectors is always commutative, that must be equal to v2 dot v1. So v dot v must be equal to magnitude of v square and v1 dot v2 must be equal to, yes, must be equal to v2 dot v1, that is the dot product is commutative. So this can be further written as 6 times mod a square plus 21 a dot b minus 10 a dot b gives us, yes, plus 11 a dot b and minus 35 mod b square. तो ये आएगा जिगरा आंसर. This would be the resultant or result of 3a minus 5b dot 2a plus 7b. All about question number 7. Well, very much simple. So now lies question number 8 of this exercise 10.3. And what has been asked there? Find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude such that the angle between them is 60 and their scalar product is 1 divided by 2. We have two vectors a and b, but their magnitudes are same. And the angle between the two vectors is 60 degree and their scalar product is 1 divided by 2. And we need to find the magnitude of vector a and vector b which are same. So suppose magnitude of vector a and magnitude of vector b, they must be some scalars. And the scalar, since magnitude of a is equal to magnitude of b, we will take that scalar is equal to k. So यहाँ पे हम लेट करेंगे. तो क्वेश्चन में क्या करना है जिगरा? हमारे पास a वेक्टर है, b वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है सेम है. अब इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्रीज है और इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 1/2 के बराबर है.
तो जिगरा हमें इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, वही हमें निकालना है। तो हमें नहीं पता कि क्या है, सो वी विल लेट दैट इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा और के। लेट magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B is equal to K, because they have same magnitude, because A and B have, because magnitude of A is equal to magnitude of B, which is given. So given that the two vectors have the same magnitude, and let that magnitude, let that scalar be denoted by what? K. Let that scalar be denoted by K. Also, और क्या दे रखा है जिगरा कि देयर डॉट प्रोडक्ट A dot B also given that कि A dot B, their dot product is equal to the scalar, which is obviously a scalar, and that scalar is equal to 1 divided by 2. So implies, here we will put the definition of dot product of two vectors. What about the definition of dot product of two vectors? Yes, product of their moduli and cosine of angle between them. So magnitude of A, magnitude of B, cosine of angle between them, that is mod A mod B into cos. It is given that the angle between them is what? 60. So आएगा cos 60, and that's equal to 1 divided by 2, because the angle between, yes, A and B is 60, because the angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्रीज, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्रीज. इट हैज बीन आस्क्ड इन द it has been given in the this question, that is question number 8. So implies this can be further written as, now magnitude of A, magnitude of B, magnitude of A भी K के बराबर है, magnitude of B भी K के बराबर है, तो instead of magnitude of A we can write K, instead of magnitude of B we can write K. Now cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1 divided by 2. So into 1 divided by 2 must be equal to 1 divided by 2. Now 1 divided by 2 LHS में भी मल्टीपल है, 1 divided by 2 RHS में भी 1 के साथ सपोज मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली जो है यहां पे 1 by 2 और 1 by 2 कैंसिल होगा, तो यहां पे बचेगा k into k, which is k square. So implies k square must be equal to RHS में बचेगा 1. So k square is equal to 1. Implies अब k का वैल्यू आ सकता है प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर को साइड में ले लो तो बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1. लेकिन k है, k जो है वो मैग्नीट्यूड है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव टर्म को, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे हैं. सो k मस्ट बी इक्वल टू +1, बिकॉज k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a is equal to magnitude of b can never be less than 0. The magnitude of any vector can never be less than 0. That is why we have rejected the negative sign, and that's why the value of k must be equal to 1. So all about question number 8, जिसमें हमें निकालना था value of k, that is magnitude of a, magnitude of b. So और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो therefore magnitude of a is equal to magnitude of b is equal to 1. लिहाजा दोनों वेक्टर्स a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा? 1 होगा. तो जिगरा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर. सो दैट इज a एंड b, दैट इज a एंड b आर क्या होंगे? ये यूनिट वेक्टर्स. दे मस्ट बी यूनिट वेक्टर्स. So that's all about question number 8 of this exercise. Now move on to the next, that is question number 9. And in question number 9, we have two vectors, x vector and a vector, such that it is given that a vector is a unit vector. So we need to find the magnitude of x vector such that x minus a dot x plus a is equal to 12. We have to find the magnitude of vector x if for a unit vector a. So given question number 9 में, rather yes, question number 9 में क्या दे रखा है? Given a unit vector, given a unit vector a, given
ऐसे लिखेंगे गिवन फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, दैट इज अगर ये ए यूनिट वेक्टर है, इसका क्या मतलब, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब क्या दे रखा है कि x माइनस ए डॉट x प्लस ए, x माइनस ए डॉट x प्लस ए एंड दैट्स इक्वल टू 2, ये दे रखा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वहीं से दे रखा है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर सच दैट x माइनस ए डॉट x प्लस ए इज इक्वल टू 2। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दिस थिंग, तो इंप्लाइज दिस कैन बी रिटन एज, लुक जिगरा, पहले x को डॉट करेंगे x प्लस ए से, फिर माइनस ए को डॉट करेंगे x प्लस ए से, तो क्या आएगा x डॉट x, सो दैट इज x डॉट x, यस, प्लस x डॉट a, सो प्लस x डॉट a, हाँ जिगरा, माइनस a डॉट x, सो माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर, यस, माइनस इंटू माइनस इज माइनस इंटू प्लस इज अगेन माइनस a dot a, so a vector dot a vector, and that must be equal to 12. Clear? So implies this can be further written as x dot x, the dot product of a vector with itself gives us magnitude of that vector square. So that is magnitude of x square plus this is x dot a is x dot a minus, instead of a dot x we can write x dot a. Why? Because the dot product of vectors is commutative, so you can write a dot x, and instead of a dot x you can write x dot a minus a dot a is again mod a square, because the dot product of a vector with itself gives us the magnitude of that vector square, and that's equal to 2, which further implies that, अब देखो जिगरा, ये प्लस x डॉट a है, ये माइनस x डॉट a है, तो कैंसिल होगा, ठीक है। यहां पे क्या बचेगा, mod x square, so mod x square, yes, minus mod a का वैल्यू क्या है 1, so 1 square, and that's equal to 12, because mod a is equal to 1 as it is given in the question that a is a unit vector. So implies this can be further written as mod a x square must be equal, ये यहाँ पे माइनस 1 स्क्वायर दैट इज माइनस 1 है, तो उस साइड में प्लस बनेगा और 12 प्लस 1 विल गिव अस 13। क्लियर? इंप्लाइज अब हमें चाहिए मॉड x, तो स्क्वायर को उस साइड में ले लो तो बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, लेकिन माइनस साइन फिर से नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड x, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट इज व्हाई मॉड ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 plus not minus, because minus क्यों नहीं, because magnitude of x can never be less than 0, क्योंकि magnitude of any vector x vector, because magnitude of any vector can never be negative, can never be less than 0. So that is we have got the result, that is the magnitude of x vector, an unknown vector, must be equal to square root of 13. So all about question number 9. Now lies question number 10, and that's an important question as far the exercise is concerned. We have actually three vectors, vector A, vector B and vector C, and they have been resolved in terms of their components. A is a vector, B is a vector and C is a vector, and they have been represented in terms of their rectangular components such that A plus lambda B is perpendicular to C. अगर a वेक्टर को lambda टाइम्स b वेक्टर के साथ सम करेंगे, फिर उस वेक्टर का डॉट करेंगे c वेक्टर के साथ, या दे रखा है कि दे आर परपेंडिकुलर, a प्लस लैम्डा b और c आपस में परपेंडिकुलर है। जब दो नॉन जीरो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा। तो a प्लस लैम्डा b डॉट c मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, उसको जीरो के बराबर ले लो, और हमें चाहिए वैल्यू ऑफ लैम्डा, उसमें से आएगा वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो गिवन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास वेक्टर्स हैं गिवन, वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k,
we have another given vector that's equal to b vector, which is expressed in terms of its components as 3i rather minus I plus 2j plus k, minus I plus 2j plus k. And we have the given vector c, which have again been resolved in terms of its components as 3i plus j, 3i प्लस जे. केथ कंपोनेंट मिसिंग है, हम इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे, प्लस 0 टाइम्स के. ठीक है जिगरा, ये वेक्टर था इतना ही 3i प्लस जे, हमने इसके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि इन दो वेक्टर्स में केथ कंपोनेंट है, लिहाजा इसमें भी इंट्रोड्यूस कर देंगे कैसे, जीरो स्केलर से मल्टीपल करके, तो 0 इंटू के. नाउ इट इज गिवन दैट a प्लस लेमडा बी, ए वेक्टर ले लो, बी वेक्टर, पहले बी वेक्टर ले लो, इसको किसी स्केलर लेमडा से मल्टीपल कर दो, फिर उस लेमडा बी को ऐड करो किसके साथ, ए के साथ, जो यहां से वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, एंड दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा. सो नाउ गिवन दैट, a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ये जो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये क्या है, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी. ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, तो ए प्लस लेमडा बी ऑब्वियसली मस्ट बी अ नॉन जीरो वेक्टर. सो जब एक नॉन जीरो वेक्टर और सी भी नॉन जीरो वेक्टर है, तो जब दो नॉन जीरो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0. सो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, अगर इसका डॉट करेंगे किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, बिकॉज व्हेन टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट इज ऑब्वियसली इक्वल टू 0. तो यहां पे रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज इफ V1 is perpendicular to V2, V1 not equal to 0 vector, हाँ जी ग्राफ, V2 वेक्टर not equal to 0 वेक्टर, then तब क्या होता है कि V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0 स्केलर. जब V1 नॉन जीरो वेक्टर है, V2 नॉन जीरो वेक्टर है, प्रॉपर वेक्टर्स हैं दोनों, फिर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होता है जिगरा, देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0. सो इंप्लाइज, अब ए वेक्टर का अपना वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो क्या है, 2i प्लस 2j प्लस 3k. सो 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स, यस, बी वेक्टर, बी वेक्टर का अपना वैल्यू पुट कर दो, माइनस आई प्लस 2j प्लस k. और ये जो वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर जो है, इसका डॉट कर दो C के साथ, व्हाट इज दैट, 3i. सो 3i प्लस j प्लस 0k, और इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दिस वेक्टर विच लाइज विद इन द ब्रेसेस. तो क्या आएगा, इंप्लाइज दिस कैन बी रिटन एज, हाँ जी, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसे ही रख दो, 2i प्लस 2j प्लस 3k. अब लेमडा से मल्टीपल कर दो, ये लेमडा बाहर स्केलर है, अंदर एक वेक्टर है, दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो लेमडा इंटू माइनस आई क्या आएगा, माइनस लेमडा आई, लेमडा इंटू 2j दैट इज प्लस 2 लेमडा j, और लेमडा इंटू k दैट इज प्लस लेमडा k, और इसका डॉट कर दो किसके साथ, 3i प्लस j प्लस 0k, और वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर. ठीक है जिगरा, तो फर्दर सिंपलीफाई कर देते हैं इससे. इंप्लाइज दिस कैन बी रिटन एज, नाउ लुक हियर, दिस इज 2i माइनस लेमडा आई, आई और आई को कॉमन लेके आओ, क्या बचेगा, शाबाश, 2 माइनस लेमडा इंटू आई, तो 2 माइनस लेमडा इंटू आई प्लस 2j प्लस 2 लेमडा j और j को कॉमन लेके आओ, क्या बचेगा, 2 प्लस 2 लेमडा, सो 2 प्लस 2 लेमडा
इंटू जे, हाँ जी रा, प्लस 3k प्लस लेमडा के और के को कॉमन लेके आओ, क्या बचेगा 3 प्लस लेमडा इंटू के। अब ये जो वेक्टर है इसका डॉट करना है किसके साथ, 3i प्लस जे प्लस 0k, और वो रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर है। नाउ विद इन द ब्रेसेस वी हैव अ वेक्टर, हमारे पास ये एक वेक्टर है, हमारे पास ये वेक्टर है, और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। नाउ हमें इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पहले कैलकुलेट करना है, but both the vectors are expressed in terms of their rectangular components. When two vectors are expressed in terms of their rectangular components, what would be their dot product? पढ़ा है हमने जिगरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लो, यानी पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट से मल्टीपल प्लस, दूसरे को दूसरे कंपोनेंट से मल्टीपल प्लस, तीसरे स्केलर कंपोनेंट को तीसरे स्केलर कंपोनेंट के साथ मल्टीपल, फिर उनका सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ बोथ द टू वेक्टर्स। तो क्या आएगा जिगरा, इंप्लाइज दिस कैन बी रिटन एज, यहां पे ith कंपोनेंट जो है स्केलर क्या है 2 माइनस लैम्बडा, तो यहां पे क्या है 3, सो 2 माइनस लैम्बडा इंटू 3, ठीक है जिगरा। अब प्लस यहां पे दूसरा कंपोनेंट 2 प्लस 2 लैम्बडा, सो 2 प्लस 2 लैम्बडा इंटू किसके साथ करना है, यहां का दूसरा कंपोनेंट क्या है दैट इज 1, प्लस यहां पे तीसरा कंपोनेंट दैट इज 3 प्लस लैम्बडा, और इसका मल्टीपल करना है यहां के तीसरे कंपोनेंट के साथ विच इज 0 एंड दैट्स इक्वल टू 0। implies this can be further written as, हाँ जी गए, 3 into 2 minus lambda, 3 2s are 6, minus 3 into lambda, that is 3 lambda, so 6 minus 3 lambda, 6 minus 3 lambda, yes, 2 plus 2 lambda into 1, that is 2 plus 2 lambda, and 3 plus lambda into 0, that is plus 0, is equal to 0, ठीक है जिगरा। तो implies this can be further written as, now minus 3 lambda plus 2 lambda, minus 3 lambda plus 2 lambda will give us minus lambda, so minus lambda, 6 plus 2 will give us 8, so minus lambda plus 8 is equal to 0, implies minus lambda is equal to plus 8 को साइड में ले लो तो बनेगा minus 8, माइनस और माइनस दोनों साइड में है तो काउंटर बैलेंस कैंसिल होगा, तो लैम्बडा का वैल्यू आएगा जिगरा 8। So the value of this unknown lambda, the value of that unknown scalar lambda is 8, such that a plus lambda b is perpendicular to c, where a, b and c have been represented in terms of their rectangular components. तो जिगरा अगर a प्लस लैम्बडा b, a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर परपेंडिकुलर है किस वेक्टर पे, c वेक्टर पे, तब उस लैम्बडा जो आपने एक स्केलर लिया है अननोन स्केलर, उस लैम्बडा का वैल्यू आएगा 8। सो अगर लैम्बडा का वैल्यू 8 है तभी a प्लस लैम्बडा b परपेंडिकुलर होगा टू c वेक्टर। That was an important question regarding this exercise, question number 10. Now lies another question. And in that question, that is question number 11. And in question number 11, we have to show that two vectors are perpendicular. Again, given two vectors are there, and we have to prove that they are perpendicular. Since both the two vectors are non-zero vectors, and we have to prove that two non-zero vectors are perpendicular. How we can prove? By obtaining their dot product. If dot product of two non-zero vectors is 0, obviously they must be perpendicular. So the given vectors are mod AB plus mod BA and mod AB minus mod BA vector. So we will denote these vectors by V1 and V2. Question number 11. Let V1 vector is equal to, yes, mod A B vector plus mod A B vector plus mod B A vector, and दूसरा गिवन वेक्टर जो है उसको सपोज V2 से डिनोट करेंगे, इसलिए लेट यहां पे मेंशन किया है।
तो v2 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए बी वेक्टर, मॉड ए बी वेक्टर माइनस मॉड बी ए वेक्टर। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, बी टू गिवन वेक्टर्स। Since mod a b vector mod b a vector mod a b vector minus mod b a vector, they are non-zero vectors and we have to prove that they are perpendicular to each other. How we can prove? By obtaining their dot product. So therefore हम obtain करेंगे जिगरा v1 dot v2। तो v1 dot v2 किसके बराबर आएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। v1 का अपना वैल्यू डाल दो, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, और इसका डॉट करना है v2 के साथ। वो क्या है? डॉट v2 दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। सो कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर दो, तो यहां से जिगरा क्या मिलेगा? दैट्स इक्वल, पहले मॉड ए बी से दोनों कंपोनेंट्स, दोनों टर्म्स को डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट इज मेंट फॉर वेक्टर्स। मॉड ए इज अ स्केलर, मॉड ए इज अ स्केलर, तो स्केलर का डायरेक्ट मल्टीपल होगा, तो मॉड ए इंटू मॉड ए इज मॉड ए स्क्वायर, सो दैट इज मॉड ए स्क्वायर। अब बी डॉट बी, so that is vector b dot vector b, because b and b are vectors and dot product is meant for vectors. Scalars are directly multiplied under the operation dot product. हाँ जीरा, अब mod a into mod b, that is plus into minus, पहले minus आएगा। हाँ जीगा, mod a into mod b, that is mod a mod b, yes। अब b dot a, so b वेक्टर डॉट a वेक्टर हो गया। मॉड a b से डॉट प्रोडक्ट। अब मॉड b a से कर दो, तो मॉड b इंटू मॉड a, दैट इज प्लस मॉड b मॉड a, हाँ जिगरा, a डॉट b, सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब प्लस इंटू माइनस, फिर से माइनस आएगा, मॉड b इंटू मॉड b, दैट इज मॉड b स्क्वायर, मॉड b स्क्वायर, a dot a, that is a dot a, clear? Implies, or that's further equal to, शाबाश जिगरा, mod a square is mod a square, b dot b, the dot product of a vector with itself gives the magnitude of that vector square, so that is equal to mod b square minus mod a mod b b dot a प्लस ये मॉड बी इंटू मॉड ए है, मॉड बी भी स्केलर है, मॉड ए भी स्केलर है। स्केलर्स का मल्टीपल हमेशा कम्यूटेटिव होता है, तो इंस्टेड ऑफ मॉड बी इंटू मॉड ए वी कैन राइट मॉड ए इंटू मॉड बी। अब ये है a डॉट बी, इंस्टेड ऑफ a डॉट बी वी कैन राइट b डॉट a। व्हाई? बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, माइनस मॉड बी स्क्वायर into a dot a is mod a square। अब देखो जीरा, ये प्लस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, तो ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस विल कैंसल आउट, ठीक है। माइनस मॉड ए मॉड बी बी डॉट ए, ये माइनस है, मॉड ए मॉड बी बी डॉट ए, ये प्लस है, तो ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो बचेगा क्या? 0। इंप्लाइज, हमने लिया था जिगरा v1 डॉट v2, दो प्रॉपर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, तो जब दो प्रॉपर वेक्टर्स का, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका क्या मतलब? कि दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो देयरफॉर v1 वेक्टर डॉट देयरफॉर v1 वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर, दैट इज। लेकिन v1 का वैल्यू क्या है? मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड बी ए वेक्टर is perpendicular to what? v2, that is mod a b vector minus mod b a vector। यही प्रूव करना था जिगरा कि ये वेक्टर इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। कैसे कैलकुलेट किया?
by calculating their dot product. Since they are two non-zero vectors, their dot product is 0. Obviously, they must be perpendicular to each other. So this was all about question number 11.